گلگت بلتستان کے علاقے جی بی ایل اے 13 سٹور 1 کی نشست پر ضمنی انتخاب آج ہو رہا ہے۔ پولنگ 8 سے 6 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقے میں مرد ووٹر کی تعداد 18,231 اور خواتین کی تعداد 15,147 ہے۔ ووٹنگ کے لیے 56 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ نون لیگ کے رانا فرمان علی اور پیپلز پارٹی کے عبدالحمید خان امیدوار، تحریک انصاف کے خورشید احمد خان سمیت 10 امیدوار میدان میں ہیں۔ سیٹ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جعلی ڈگری پر نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ نگران حکومت معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی نے روڈ میپ وضع کر لیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ آرمی چیف عبوری وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ گزشتہ روز کے اجلاس میں نگران وزیر اعظم نے معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے عملی اقدامات کی منظوری دی۔ ملک کی معاشی بحالی، کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 5واں اجلاس۔ آرمی چیف عبوری وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی بھی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق ایپیکس کمیٹی اجلاس کو ملک میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹوں کے سدباب کے لیے لائحہ عمل سے آگاہ کیا گیا۔ کمیٹی نے اجلاس میں معاشی اور انتظامی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے روڈ میپ واضح کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ نگراں حکومت کی قلیل مدت کے باوجود ہمیں معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ان اقدامات کے نفاذ سے آئندہ منتخب حکومت کو بھی ملکی معیشت کی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ We are making a very sincere effort کہ ہم اپنا روڈ میپ ڈیفائن کریں۔ ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائیو کیا جائے اور اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں ٹو ڈیفائن دا اسٹیپس ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ ہم نے اسمگلنگ کو ہر صورت روکنا ہے۔ برآمدات بڑھا کر عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ پچھلے سال سے $5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو $5 بلین گھٹی ہے، نہ صرف وہ $5 بلین بڑھانی ہے بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلز پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر لی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے قلیل، وسط اور طویل المدتی منصوبہ بندی پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے عملی اقدامات کی منظوری دی۔ پیپلز پارٹی کا 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آئین کے مطابق عام انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ہم پہلے بھی الیکشن کے لیے تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ جو ہمیں جیل میں ڈالنا چاہتے تھے وہ آج کل خود جیل میں ہیں۔ ان کو ہمارا پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹی خبروں سے ہمیں خاموش کروا دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو، ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا قید رہا ہے، 11.5 سال۔ آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا، ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں۔ گھبرانا نہیں، آپ سیکھیں، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا۔ جو کٹپتلیاں بناتے ہیں، جو کٹپتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹپتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار ہے کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں ججز پر اعتراض کے معاملے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی
कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई, इसलिए उसे मुस्तरद किया जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तफसीली फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। जजेस पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय जज को हरासा करने के लिए दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की और अदालत की बेतौकीरी। तफसीली फैसले में मजीद लिखा कि वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसी ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई। ऑडियो लीक केस के खिलाफ एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 15 मई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तिआल अंगेज बयानात दिए। जजेस पर एतराज़ात करने वाली हुकूमती दरखास्त अदलिया पर हमला है, जिसे मुस्तरद किया जाता है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। रावलपिंडी में भी बिजली चोरों को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पेशावर में बिजली चोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि कुंडों और नाद दहिंदगान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 2 दिन की कार्रवाई में साबिक MNA समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। रावलपिंडी में पुलिस हुकाम को क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी गयी। SHOs को बिजली चोरी से मुतालिक दरखास्तों पर फौरी मुकदमा दर्ज करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके चलान अदालतों में पेश किए जाएं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में अहम शख्सियात समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली मेहर सईद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। उन्हें 8,620 यूनिट्स 2,50,000 रुपए चार्ज किए गए। मुस्लिम लीग नून के साबिक नाजिम मोहम्मद शहबाज को 3,126 यूनिट्स 1,93,000 रुपए चार्ज किए गए। सियासी कारकुन आजम जट से 4.5 लाख रुपए वसूल किए गए। DHA में मारूफ रेस्टोरेंट से 2,53,000 वसूल किए गए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कुंडो और नादहिंदगान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवां साल 9 माह के दौरान 14,000 से जायद कार्रवाइयाँ की गई हैं। रोजाना की बुनियाद पर 60 से जायद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पेस्को चीफ इंजीनियर फैसल रब्बी ने बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत कर दी। पेशावर सर्कल में 102 कुंडे हटाए गए और 25 FIRs के लिए दरखास्तें जमा करा दी गई। कोयटा में 68 बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दरखास्तें दी गयी। गुजरावाला में गैपको सर्विलेंस टीमों ने कामयाब कार्रवाइयों में 43 बिजली चोर पकड़े। फैसलाबाद में 222 बिजली चोर धर लिए गए। 49 अफराद को 43 लाख से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। कबीरवाला में MPA के उम्मीदवार राना मोहम्मद इरफान बिजली चोरी करते पकड़े गए। उम्मीदवार ने साथियों के हमरा मैपको टीम को यरगमाल बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। शेखुपुरा, कसूर और उकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में कई बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। भारी बिलों से तंग आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन बिजली मजीद महंगी होने का तोहफा मिल गया है। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.46 महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। रिलीफ के नारे लगाने वाली आवाम को हुकूमत ने मजीद तकलीफ दे दी। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट महंगी की। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सितंबर के बिलों में ही होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आवाम ने बिजली में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया। कहा किचन चलाएं, बच्चों की फीसें भरें या बिजली के भारी बिल जमा करवाएं। हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो पेट्रोल और बिजली। रोज सुबह उठें तो बिजली की कुछ ना कुछ कीमतों में इजाफा हुआ होता है। आप जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले हैं, उनकी बिजली जो चोरी करके जला रहे हैं, उनको पहले रोकें। खुदारा गरीब पर रहम करें। 20,000 रुपये जिसकी आमदनी है
اس کا 50,000 रुपया बिल आ रहा है। अब खुद हिसाब लगाएं कि ये गरीब आदमी यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा। दूसरी जानिब नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग पर सख्त नोटिस। सारिफीन की जानिब से बड़ी तादाद में दर्ज करवाई गई शिकायत में ज्यादातर मीटर रीडिंग की क्लियर तस्वीर का ना होना और बिल पर गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना है। अथॉरिटी ने मामले पर सख्त नोटिस लेते हुए डिस्कोस के CEO को 12 सितम्बर को तलब कर लिया। इजलास में बिजली की टैरिफ को कम करने के लिए बात की गई। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं डिस्कोस का मामला इजलास में ज़ेर बहस आया। डिस्कोस के बोर्ड को गैर सियासी बनाने के हवाले से भी बात हुई। गैस सेक्टर में 3.5 अरब का नुकसान होता है। गैस सेक्टर के लिए खराबियों को दूर करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया है। इस वक्त कैपेसिटी विंटर में ज़्यादा होती है तो हम इंक्रीमेंटल सप्लाई जो इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा अगर यूज़ करती हैं बिजली तो उनको ऐसा टैरिफ दें कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर लॉसेस ना हो। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है उनके बोर्ड्स को स्ट्रेंथन करना है और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। अगर उनके बोर्ड्स और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, किस तरीके से मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाए कि व्हीलिंग चार्जेस पे करके जो पावर प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली बिजली दे सकें इंडस्ट्री को। जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि अगर गैस की सप्लाई होगी तो इंडस्ट्री चलेगी और हमारे पास गैस की किल्लत होती है सर्दियों के अंदर, लोड शेडिंग भी होती है, तो किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करें कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलें। आने वाले वक्तों में हमें LNG के और टर्मिनल भी बनाने पड़ेंगे और LNG के और कंटेनर भी मंगवाने पड़ेंगे ताकि इंडस्ट्री स्मूथली चलती है। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए हैं। FIA तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। क्रैकडाउन के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के लिए पेशावर, मर्दान, सवाबी और सवात अहम इलाके करार। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी मार्केट दूसरे रोज़ भी बदस्तूर सील, जबकि नौशहरा में हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉलर स्मगलरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पेशावर में गुज़श्ता रोज कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी, करेंसी और डॉलर स्मगलिंग की बड़ी मार्केट सील कर दी गई। चौकी यादगार में वाक़िया मार्केट बंद है। खसूसी टीम ने नौशहरा में हवाला हुंडी की दुकानों पर छापा मारते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ से जायद नकदी भी बरामद कर ली गई। FIA ने डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी। हर टीम 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इंचार्ज होगा। टीम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान भी शामिल होंगे। FIA हुकाम के मुताबिक डॉलर स्मगलिंग को रोकने से मुतालिक टीम में सूबे भर में हवाला हुंडी के कारोबार से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारी यकीनी बनाएगी। FIA के सूबे के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि मर्दान, सवाबी और सवात को गैर कानूनी हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के लिए हॉट स्पॉट करार दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे से 46,013 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1.99 रुपये सस्ता होने के बाद 302 रुपये 95 पैसे और ओपन मार्केट में मज़ीद 3 रुपये सस्ता होने के बाद 304 रुपये का हो गया है। फी तोला सोना भी 4,000 रुपये कम हो गया है। राशिद खान तफसीलात रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स में 40,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स कारोबार के अख्तिताम पर 40,013 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह 46,077 जबकि कम तरीन सतह 45,728 पॉइंट्स रही। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 45,757 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 1.99 रुपए सस्ता होने के बाद 304.94 रुपए से कम होकर 302.95 रुपए पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर मजीद 3 रुपए सस्ता होने के बाद 307 रुपए से कम होकर 304 रुपए पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी है। फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता होने के बाद 2,12,500 रुपए पर आ गया, जबकि 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए सस्ता होने के बाद 1,42,184 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $2 इजाफे से $1,923 फी औंस में फरोख्त किया गया। राशिद खान, GNN, कराची। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है। महंगाई की शरह में 0.96% का मजीद इजाफा हो गया है। हालिया हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, टमाटर और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क
में महंगाई कंट्रोल से बाहर। हालिया हफ्ते के दौरान 0.96 इजाफे के साथ महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते 32 इशाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 की कीमतों में कमी और 14 इशा की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते टमाटर 15 रुपए, दाल मसूर 32 रुपए, चीनी 11 रुपए 48 पैसे, लहसुन 20 रुपए, दाल मूंग 9 रुपए 73 पैसे, प्याज 3 रुपए और गुड़ 8 रुपए फी किलोग्राम महंगा हुआ। दाल माश 15 रुपए 48 पैसे, एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा हुआ। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, आलू, अंडे, दही, टोटा चावल और केले की कीमत में भी इजाफा हुआ। होशरुबा महंगाई से तंग आए शहरी हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी की पहुँच से बाहर हो गई है और हुकूमत का कोई कंट्रोल किसी चीज़ पे भी नहीं है। ना प्राइस लिस्टें होती हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। बेतहाशा महंगाई कर दी गई है जिससे अवाम परेशान है। अवाम को रिलीफ देना चाहिए। बिजली के बिल, चीनी, गैस के बिल, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ लोग कहते हैं हम आटा लें, क्या चीज़ लें, क्या चीज़ पूरी करें। इतनी महंगाई हो गई है कि बस ना ही पूछें। आवाम को तो ज़ाहिर है हर शोबे में परेशानी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही कम हो गया है। जो बचत थी वो बिल्कुल कारोबार है नहीं इस टाइम। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी, चाय का पैकेट, 5 किलो कुकिंग ऑयल और 2.5 किलोग्राम का घी का डब्बा सस्ता हुआ। मुल्क भर में चीनी माफिया की शामत आ गई। क्रैकडाउन में खुफिया इदारों को भी शामिल कर लिया गया है। डेरा इस्माइल खान और कोयटा से सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई हैं। पेशावर में महंगी चीनी बेचने वाले 31 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों से चीनी की कीमतें गिर गई हैं। पंजाब में क्रैकडाउन के लिए 13 बड़े मगरमच्छों के नाम FIA के हवाले कर दिए गए हैं। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी, खुफिया अदारों के छापे, गोदामों से सैकड़ों बोरियां बरामद, चीनी की कीमतें गिर गईं। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए गए। लाहौर, खुशाब, सरगोदा, कसूर, फैसलाबाद, चिश्तियां और दीगर इलाकों के डीलर्स शामिल हैं। महकमे खुराक हुक्काम का कहना है कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स रूपोश हैं। इन लोगों ने कार्टेल बनाकर अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। चावर चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इदारों ने गोदामों पर छापे मारकर 538 टन चीनी बरामद कर ली। कोयटा शहर में जखीरा अंदोजी के खिलाफ छापे मारे गए, जिसके दौरान गोदामों में जखीरा चीनी की 45,000 बोरियां और यूरिया की 1200 बोरियां बरामद कर ली गईं। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कोयटा में चीनी 210 रुपए से कम होकर कीमत 190 रुपए की सतह पर आ गई। कराची में कीमतों में कमी के बाद चीनी 190, लाहौर में 180, इस्लामाबाद में 200, जबकि पेशावर में 190 रुपए में दस्तयाब है।